Welcome to my video. Today again we shall do the median part 2, and last video you might have seen the conceptual part. So some questions I have given in median, how to find it out, and that you can also see if you want to know the concepts. Otherwise this video is good for your examination and you should prepare for the board examination. This type sums only will come, only the figures they will change. So let's start. Okay, in this question what he is saying, calculate the median. Median, he says, we are discussing about the median, we know what is median. So median salary of the following data we have to find it out. What the salary of how many people? 280 people salary has given. Okay, so this is for in salary is in thousands. 5 to 10,000, how many people they get? 49, and 10,000 to 15,000, 133 people. 15,000 to 20,000, how many people? 63 people, and 20,000 to 25, 15 people, and 25 to 30,000, 6 people, and 30,000 to 35,000, how many people? 7 person, and 35 to 40,000, how many people will get? 4 people. Similarly 40 to 45,000, how many? They get 2, and 45 to 50,000, how many? Only 1 people will get. So now we know that frequency. Now we can find the cumulative frequency. Cumulative frequency we know 49 plus 63, 49 plus 133, sorry, 49 plus 133, we have to add it up. So you put that is what is cumulative frequency? The new frequency in this you have to add the old frequency. So 133 plus 49, that will become 182. Okay, after 182 plus 63, that will become 245. Then this one will become 260, and this one will become 266. Then this one will become 273, and this one become 277, and this becomes 279. Then one is 280. So 280 people, yes, 280 people is there. So this is the summation of Fi equals to 280. That is our N. Okay, now we got N. Now what is N upon 2? N upon 2 we have to find out. That is 280 divided by 2. So that only N upon 2 only will decide what class, what is the model class. है ना? That's why we divide these 2 ones are 2, 2 fours are 0, 140. So now the cumulative frequency, frequency is just greater than N upon 2. N upon 2 is how much? N upon 2 is 140. So cumulative frequency will become how much? That is 150, just greater which one? This one is 182. Okay, 182. Now here we can make a what? Rectangle. So 182. So this becomes our L, and this becomes the upper cumulative frequency. This one 49, upper cumulative frequency will become our 49. L will become 10. H will become how much? 5. Okay, then this is our F. F is 133. Okay, according to this we shall calculate. Okay, what is our median formula? Median is equals to, let's write L plus N upon 2 minus CF upon F into H. Okay, this is our formula. So median equals to L is our 10, है ना? 10 plus N upon 2 is what? 140
140 माइनस CF क्या है, CF इज 49, CF इज 49 अपॉन F is 133 and height is ours 5. Okay, तो that equals to 10 plus इसको 149 माइनस करने से कितना हो गया, 10 minus 9 is 1, 13 minus 4 is 91 upon 133 into 5, that equals to 10 plus 91 upon 135 को काटें, फिर 13 7 13 सर 7 1 सर 7 7 19 सर 7 1 सर 7 7 7 9 सर 63. Okay, that equals to 35 13 7 13 7 sir, no 7 13 sir, this is 7 13 sir, 13 5 sir 65 upon 19, that is equal to 10 plus 19 को डिवाइड करने से आ जाएगा हमारा 3.42, that will become ours 13.42 is the answer. ठीक है. Next question is what? Here he has given, you see, 130 to 139, 140 to 100. These are the classes. Frequency has given. We have to find the median. But here it is 130, here 139, here 140. So the upper limit is 139. Here lower limit is 140. What is the difference? 1 divided by 2, that is 0.5. You have to minus here. A lower limit minus लोअर लिमिट माइनस 0.5 है ना. देन अपर लिमिट लाने के लिए अपर लिमिट प्लस 0.5. लो के लो में कम से कम ही करना है इसलिए माइनस ही करते हैं, और अपर लिमिट बड़ा है, बड़ा को बड़ा ही करना है इसलिए प्लस करना है, ऐसा याद रख लेना. तो 130 से माइनस करने से 195, 129, फिर 139 प्लस 0.5, ये 139.5, ये हो गया 134. 140 से इसको माइनस 0.5 कहते हैं, 139.5 हो गया, ये हो जाएगा 149.5. और ये 150 से माइनस करने से 149.5 हो गया, ये 159. फिर ये यहाँ लिख दिए, फिर इसको 0.5 ऐड कर दिए, ऐसा करके सारे ये लिख दिए. हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी दे दिया 4 9 18 28 24 10 7 दे दिया. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिख देंगे. फिर 4 + 9 इज़ 13. फिर 13 + 18 करने से ये 31. 31 + 28 करने से 59. 59 है ना 8, हाँ 59. 59 + 24 करने से 83. ठीक है. 83 + 10 is 93. 93 + 7 is 700. So our n has come how much? 100. Now n upon 2 we can take. So we can decide which model class, median class, sorry not model. मेरे ख्याल पिछले क्लास में मैंने कह दिया मॉडल नहीं है, वो है हम मीडियन क्लास निकाल रहे हैं. मीडियन क्लास निकालने के लिए अब क्या करेंगे? द CF शुड बी जस्ट ग्रेटर देन द CF is just greater than the n upon 2. तो n upon 2 क्या है? 50. n upon 2 is E equals to 50. Therefore CF will become उससे बड़ा. कौन सा है? 50 से बड़ा कहाँ है? ये वाला है ना. So we shall make a this one become lower limit, this one becomes our F, this is our upper कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये हो गया. अभी नेक्स्ट में कैलकुलेट करेंगे. तो CF equals to how much? CF is, let me see, that is 59 I believe. CF is greater than 50. This is 59 है ना. CF is 59. So greater than CF that is 59. So model class हो जाएगा मीडियन, सॉरी फिर मॉडल क्लास कर रही हूँ. मीडियन क्लास हो जाएगा. मीडियन क्लास हो जाएगा कौन सा है हमारा? 159.5 से 169.5. 159.5 से 169.5. ये हो गया मीडियन क्लास. अभी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 28 हो गया. ठीक है.
तो अपर क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है उसका ऊपर वाला कितना है 31, दैट इक्वल्स टू 31 या 37, 31 8 11, हाँ 31, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका मीडियन इक्वल्स टू L हमारा कितना है 159.5 प्लस n हमारा क्या है, n हो रहा है हमारा 50 हो गया था, 100 आया था, 100 मैंने हो गया, CF हो गया 31 अपॉन ये हो गया 28 इंटू ये 10 है, 10 क्या है 169 माइनस 159.5, 10 हो गया, 990 6 माइनस 5 इज़ 1, ठीक है 10 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 159.5 प्लस 50 से 31 जाएगा तो क्या हो गया इंटू 10 19, 10 माइनस 9 इज़ 1, 4 माइनस 3 इज़ 1 इंटू 10 इज़ 190/28, सो दैट वन विल बिकम, अब अपना 159.5 इसको डिवाइड करने से हमारा आएगा 6.79, दैट इक्वल्स टू 957, हाँ ये हो गया 159.5 देन 6.79, 9 हो गया 12, 1 9 2 16 6 1 166, that equals to 166.29 is the median. This is the आंसर। समझ में आ गया बच्चे? है यहाँ दिया है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये कह रहे मीडियन दे दिया 28.45 और क्लास इंटरवल से दे दिया 0 to 10 5 है, 10 to 20 x है, मालूम नहीं है, 20 से 30 20 बच्चों का है, 30 to 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना 15 है, 40 to 50 मार्क्स कितने बच्चों का है पता नहीं, y रख दिया, 50 to 60 पर मार्क्स कितने बच्चों का है 5 आया। तो इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल अच्छा 0 to 10 5 हो गया, 10 to 20 कितने बच्चों का है x है, 20 से 30 कितने बच्चों का, 20 से 30 20 बच्चों का, 30 से 40 कितने बच्चों का 15, 40 से 50 कितने बच्चों का y, 50 से 60 कितने बच्चों का 5, टोटल कितने हमारा 60 है। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये फ्रीक्वेंसी दे दिया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 5 लिखेंगे, दिस वन विल बिकम 5 + x, दिस वन विल बिकम 25 + x, दिस वन विल बिकम 40 + x, दिस वन विल बिकम 40 + x + y, क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा 45 + x + y, ये हो गया। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट में। तो हमारा मीडियन क्या दिया है, मीडियन इज हाउ मच 28.5 he has given, isn't it? This lies in which class interval? This lies in which class interval, that we have to find out. समझ गए, वहाँ n से निकालते थे लेकिन अभी इसको 28.5 कौन सा क्लास इंटरवल में होगा, 20 से 30 क्लास इंटरवल के बीच में यू विल फाइंड आउट दिस वन। सो लेट मी ड्रॉ दिस, यहाँ 28.5 इन दिस क्लास इंटरवल इट लाइज। समझ गए, तब तो n/2 लेके करते थे, यहाँ n तो हमको मालूम नहीं, x क्या है मालूम नहीं, मोर देन 60 या x 40 हो सकता है, x 50 हो सकता है, क्या हो सकता है हमको मालूम नहीं, इसलिए इसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इस तरफ CF के तरफ नहीं देखना, हमेशा इस कॉलम को देखना है। तो ये हमारा हो जाएगा CF हो जाएगा, है ना।
तो अपर क्लास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो गया, ये हमारा हो गया एफ हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा। अब दिस लाइज विच क्लास इंटरवल, दैट इज द क्लास इंटरवल इज 20 to 30। ठीक है। अब मीडियन, दिस इज द इन द क्लास इंटरवल व्हाट, दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द मीडियन क्लास। हो गया। तब अब हम करेंगे एल क्या है हमारा, एल क्या है, एल इज 20। व्हाट इज आवर हाइट, हाइट इज 10 हो गया, हाइट इज 10 हो गया। एंड n/2 क्या है, n/2 क्या है, टोटल क्या है 60 दिया, 60/2 दैट इक्वल्स टू 30। सो n/2 इज 30। ओके। नाउ व्हाट इज आवर सी एफ, सी एफ निकालेंगे। सी एफ कहाँ है, सी एफ इज ये वाला 5 + x हो गया, सी एफ इज 5 + x। समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला डाल देंगे, एल मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी मीडियन को L क्या है हमारा, L इज 20 + n/2 क्या है 30 - CF क्या है 5, यहाँ कहाँ लिखा ना 5 + x हो गया। और हमारा F क्या है, F देखेंगे, F इज़ 20, F इज़ 20 इंटू हाइट क्या है 10। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 + 30 - 5 - x, ये हो जाएगा 20 + 30 - 5 - x अपॉन ये 20 और ये 10 है, ये गया। ठीक है। अब इसको लेंगे मीडियन, ये है मीडियन। अब मीडियन दिस इक्वल्स टू 20 प्लस ये हो जाएगा, ये है 25 - x अपॉन ये क्या है 20 का 2 हो गया, 2 रह गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये इधर मीडियन हमको दिया है क्या है 28.5 है, इक्वल्स टू 20 + 25 - x अपॉन 2। इसको इधर ले जाएंगे 8.5 हो गया, दैट इक्वल्स टू 25 - x अपॉन 2। फिर 2 को इधर लेंगे 8.5 × 2 दैट इक्वल्स टू 25 - x। ठीक है। अब ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 - x। 25 - x इक्वल्स टू 17 - x इक्वल्स टू 17 - 25। तो ये कितना आएगा 15 × 7 = 8 -x इक्वल्स टू 8, 8 × 7 = 15, 1 -8 आ गया। सो इधर माइनस उधर माइनस, x इक्वल्स टू 8। नाउ अब क्या निकालना है, y निकालना है। तो हमारा क्या है 45 + x + y इक्वल्स टू 60, x 45 + 8 + y इक्वल्स टू 60। अब इसको 45 + 8 + y इक्वल्स टू 60, 8 × 5 = 13, 53 + y इक्वल्स टू 60। अभी y लेंगे, ये 60 को इस तरफ ले आएंगे, 53 की तरफ ले आएंगे, y इक्वल्स टू 7। सो व्हाट इज आवर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 7। देखो x इक्वल्स टू 8, ये क्या है, x इक्वल्स टू 8, या करेक्ट हो गया। हमारा दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया। द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और एक बार तुमको प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है। अब इसका फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, है ना। ये तो आपको पता चले, सारे लिख दिया। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + x हो जाएगा, ये 4 + 5 9 + x हो गया, ये 9 + x + y हो गया, ये 10 + x +
y, टोटल क्या दिया है, क्या फ्रीक्वेंसी 20 दिया, इक्वल्स टू 20. व्हाट इज आवर, सो आवर n अपॉन 2 क्या है, n अपॉन 2 इज 20 अपॉन 2, दैट इज आवर 10. सो CF इज ग्रेटर देन 10 है ना. CF, अभी CF मॉडल क्लास निकालेंगे. मॉडल क्लास निकालने के हम क्या करेंगे, अब ये क्या है 14.4, ये किसके अंदर है, 14 पॉइंट यहाँ है. कौन से क्लास इंटरवल में है, 12 to 18. सो CF तो बाद में देखेंगे, CF इसका हो जाएगा, दिस इज CF, 4 प्लस x हो गया. तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, 12 to 18. सो लोअर लिमिट इज 12, हाइट इज क्या है, 6 होगा, है ना. हाइट क्या है, 6 है ना. हाँ, ओके, हाइट इज 6 हो गया. अब हम करेंगे, हमको और क्या चाहिए, CF हो गया, CF तो दे दिया यहाँ, हाइट हो गया, ये सारे हो गया. अभी फॉर्मूला डालेंगे. फॉर्मूला इज मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू हाइट, ये है. तो मीडियन इक्वल्स टू L हमारा क्या है, लेट अस सी, मीडियन है 12 है, मीडियन इज 12, नहीं, L इज 12 प्लस n अपॉन 2 क्या है, 10 है, 10 माइनस ये क्या है, CF4 माइनस x अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 था, है ना. फ्रीक्वेंसी देखेंगे 5 ही मेरा, फ्रीक्वेंसी 5 है, ये है फ्रीक्वेंसी 5 है, इंटू हाइट क्या है, 12 से 8 इज 6. तो मीडियन क्या है, मीडियन दे दिया क्या है, देखो मीडियन 14.4 है. सो मीडियन इज 14.4 इक्वल्स टू 12 प्लस 10 माइनस 4 प्लस x प्लस x होगा, ये 4 प्लस x होगा, 4 प्लस x या 4 प्लस x, ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस x अपॉन 5 इंटू 6, ये हो जाएगा, इधर को जाएगा तो 12 को इस तरफ ले लेंगे, है ना. 14.4 माइनस 12 इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन 5 इंटू 6, ठीक है. अब करेंगे 14.4 माइनस 12 इज इक्वल्स टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. 6 इंटू 6 माइनस x, 6 into 6 minus x upon 5. This one will become 2.4, that equals to 36 minus 6x upon 5. This is 5 2 12, 12.5. 5 से मल्टीप्लाई कर दी इस दोनों को, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6x. 36 माइनस 6x इक्वल्स टू 12 माइनस 6x इक्वल्स टू 12 minus 36, that will become how much, 20 minus 6x equals to 24, 4 2 6 3 24 माइनस 24, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, दैट इज 4. x का वैल्यू क्या आया, 4 आ गया. अभी y का वैल्यू लाएंगे, क्या हमारा आया था, x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू, टोटल क्या दिया था 20, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 10, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. नाउ x इज व्हाट, 4 प्लस y इज 10, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6. सो व्हाट इज़ आवर वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है. x का वैल्यू आया हमारा 4, y का वैल्यू 6. x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6. द मिसिंग
frequency is 4, x is 4, y is 6. This is 4. This is the answer. क्लास इंटरवल कहाँ कहाँ ज़रूरत है हमारा, ये तीनों में, सेंट्रल टेंडेंसी में, मीन में ज़रूरत होता है और मीडियन में भी ज़रूरत है, मोड में भी ज़रूरत है, क्योंकि मॉडल क्लास के लिए चाहिए, मीडियन क्लास के लिए चाहिए, मीन के लिए भी चाहिए। तो इसलिए अगर मिड वैल्यू दे दिया तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम क्लास इंटरवल कैसा निकालेंगे। देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ मिड क्या है, मिड वैल्यू क्या है, एक दिया है 115, सेकंड में क्या दिया है 125 दिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हाउ टू फाइंड इट आउट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो फ्रॉम हियर ओनली वी कैन find out. So how you will still do? So we shall see what is the difference between these two consecutive class marks. Consecutive that means 125 सेकेंड वाले में, फर्स्ट में क्या 115, इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive classes, मिड वैल्यूज ऑफ टू consecutive classes, that is 5 minus 5 is 0, 2 minus, तो 10 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10 है, तो हमेशा क्या करोगे, जो आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तो यहाँ डिवाइड बाय 2 करने से हमारा क्या है 5 आया। ये 5 क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 5 को माइनस कर देंगे, 115 माइनस 5 ये हो जाएगा 110। और अपर लिमिट में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लाने के लिए इसमें फिर 5 को ऐड कर दें, वो हो गया 120। यहाँ फर्स्ट में क्या होगा 110 टू 120, क्योंकि 5 समझ में आ गया ना, ये दोनों का डिफरेंस क्या है हम निकाले, तो निकल गया, माइनस करके निकाल दिए, फिर जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दिए, वो जो आंसर 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो आंसर को इसमें एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अपर लिमिट के लिए हमेशा प्लस करते हैं, लोअर लिमिट के लिए माइनस करते हैं, जैसा हमारा उसमें भी है क्या जे वो डिसकंटिन्यू टू कंटिन्यूस करने के लिए, तो है ना, तो उसके लिए भी ऐसा हम 0.5 को इधर माइनस करते हैं लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। यहाँ भी लोअर लिमिट में 5 को माइनस कर दिया, अपर लिमिट है, फिर इसके बाद यहाँ क्या, यहाँ भी माइनस करिए 5, तो ये हो जाएगा 120। यहाँ से ये कंटिन्यू हो जाएगा 120 प्लस 5 हो गया 130, फिर ये हो जाएगा 130 से ये 5 ऐड माइनस कर दिए, 130 हो गया, ये हो जाएगा 140, फिर ये हो जाएगा 142 150 हो गया, और ये हो जाएगा 152 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा 162 162 क्या होगा बता 170 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 170 से 180 हो जाएगा, 180 से लेकर ये हो जाएगा 190, फिर ये हो जाएगा 190 से लेकर 200 हो गया। हमको जो रिक्वायर्ड है वो हमारा आ गया, फिर इसको मैं यहाँ मिटा दूँगी, ठीक है, इसको मिटा के हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये तो समझ में आ गया ना बेटा, मिड वैल्यू देने से कैसा हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दें, यही है इसका ट्रिक है, इसीलिए ये सम मैंने दिया है, अदरवाइज बाकी सारे ठीक है आपको पता है। तो क्या करोगे, ये दोनों का डिफरेंस जो आया उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, पहले 115 से एक बार माइनस करोगे, वो हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट हो गया, और 115 से एक बार प्लस कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर दिए। अभी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए 6 कर दिए, 6 + 25 हमारा क्या होगा 31, 31 + 48 दैट इज 79, 79 + 31 48 79, 79 + 2 151 हो जाएगा, फिर 151 से फिर ये हो जाएगा 267 हो जाएगा, फिर 267 से 60 ऐड करने से 327 ये आ गया हमारा, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक।
ठीक है, ये टेढ़ा टेढ़ा आ गया। फिर 327 से फिर हम 38 को ऐड करने से ये हो गया 365 हो जाएगा। 365 से ये 22 माइनस प्लस करने से ये हो जाएगा 380, ये ऐड करने से 390 हो गया। ये सीधा से तो हमारा क्या है, n/2 क्या है, 390/2, 300 n इक्वल्स टू 390, n/2 इक्वल्स टू 390 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, तो 2 9s are 18, 2 5 195 हो गया हमारा क्या है, n/2। अभी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, द cumulative frequency is just greater than n/2, that is n/2 क्या है, 195 हो गया। that is how much होगा, देखो यहाँ ये है 267 होगा। अब इसको हम रेड पेन से अंडरलाइन के 267, ये आ जाएगा 152, ये कॉलम में हमारा आ गया। ठीक है, अब ये कॉलम में आ गया। अब ये हो जाएगा हमारा क्या है, अब मीडियन कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा CF हो जाएगा, ये हो गया CF, उसका अपर वाला CF हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F और ये हो जाएगा हमारा L। ठीक है, 267। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट। तो 195 इज 267 हो गया। तो अब चलेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब क्या है, मीडियन इक्वल्स टू क्या है हमारा फॉर्मूला, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये तो हमको मालूम है, CF क्या है, उसका ऊपर वाला CF लेते हैं, अपर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ना, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगा हमारा क्या है, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 151, हो जाए 151। F हमारा क्या है, F इज इन द सेम 116 और हाइट क्या है, हाइट इज 10। अब इसको सॉल्व करेंगे। मीडियन इक्वल्स टू L हमारा क्या है 150 प्लस n/2 क्या है 195 माइनस 151 अपॉन 116 इंटू 10। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज मीडियन इक्वल्स टू 150 प्लस 195, दैट इज कितना आ रहा है 195 माइनस 151 44 अपॉन 116 इंटू 10। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 150 प्लस 2 2 सर 2 2 सर 2 5 सर 2 8 सर, फिर ये भी फिर जाएगा 2 2 सर 2 9 सर 2 11 सर, ये हो जाएगा 110/29। अब ये आ जाएगा क्या है 150 प्लस 3.79, दैट इक्वल्स टू 153.79। उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 153.80, ये हो गया हमारा मीडियन। मीडियन क्या है 153.8 हो गया। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे, कल हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोड वाला करेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय, थैंक यू बाय वॉचिंग माय वीडियो।